100 سے زیادہ جو شہری تھے معصوم شہری وہ زخمی کر دیے گئے. شہباز شریف کے حکم پر اور رانا ثناء اللہ کے حکم پر جو گولیاں چلائی گئیں آخر انصاف کیوں نہیں ملا؟ ناظرین، آج 17 جون 2021 ہے. ٹھیک آج سے 7 برس قبل ثانیہ ماڈل ٹاؤن بپا ہوا، جس میں 100 سے زیادہ جو شہری تھے معصوم شہری وہ زخمی کر دیے گئے اور 14 سے زیادہ لوگ تقریباً جو شہری تھے معصوم وہ شہید کر دیے گئے. آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین جمع ہیں، مرد حضرات جمع ہیں، اور یہ تمام لوگ یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ سانحہ کو ہوئے 7 سال ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی سانحہ کے جو قاتل تھے وہ جیل سے باہر کیوں ہیں. جو مقتولین تھے ان کے ورثاء یہ سوال کرتے ہیں. آپ بچے بھی یہاں دیکھ سکتے ہیں، بوڑھے بھی دیکھ سکتے ہیں. ان سب کے پاس صرف ایک ہی سوال ہے کہ ہمارے مقتولین کا جو قاتل ہے وہ پھانسی پر کب چڑھے گا. آج ہم دیکھیں گے، ہم بات کریں گے سانحہ کے جو مقتولین ہیں ان کے وارثان سے بھی اور قائدین پاکستان عوامی تحریک سے بھی کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. ہمارے ساتھ 7 سال پہلے جو قتل و غارت گری کی پنجاب پولیس نے، اس وقت کے چیف منسٹر جس کو ہم قاتل اعلیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں، شہباز شریف کے حکم پر اور رانا ثناء اللہ کے حکم پر جو گولیاں چلائی گئیں اور 14 کارکنوں کو شہید کیا گیا اور تقریباً 86 کارکنوں کو زخمی کیا گیا. 2557 دن گزر چکے ہیں. اگر تمہارا خیال ہے کہ ہم بھول گئے ہیں تو یہ خیال دل سے مٹا دو. آج پاکستان عوامی تحریک لاہور نے اور تحریک منہاج القرآن نے 2 سال بعد یہ دکھا دیا ہے کہ یہ جذبے بھی جواں ہیں اور ہمت اور استقامت وہی ہے جو اگست 2014 میں تھی جب یہ اسلام آباد دھرنے کے لیے جا رہے تھے. میں آج کے حکمرانوں کو تنبیہ کرتا ہوں، آج یہ جمع غفیر اگر یہاں جمع ہوا ہے تو کل یہی جمع غفیر 7 کلب روڈ پہ بھی جمع ہو سکتا ہے. اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر پنجاب پولیس اس جمع غفیر کو روک کے دکھائے، ہم اگر رکے ہیں، ہم اگر تحمل سے چلتے ہیں تو یہ اپنے قائد کا سبق ہے کہ ہم تشدد میں یقین نہیں رکھتے. ہمارے عدم تشدد، ہمارے انصاف پسندی کو کمزوری کبھی نہ سمجھنا. یہ تمہاری پہلی اور آخری غلطی ہوگی. میں شہیدہ تنزیلہ امجد اور شازیہ مرتضیٰ کی بیٹی بسمہ امجد، جنہیں وقت کے حکمرانوں کے کہنے پر ملک پاکستان کے نام نہاد محافظوں نے 17 جون 2014 کو ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بناتے ہوئے چہرے اور سینے پر گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا. آج 17 جون 2021 اس قیامت صغریٰ کے ہزاروں گواہان کے باوجود قوم کی یہ بیٹی انصاف کی منتظر ہے. میں پوچھتی ہوں، میری ماما کا کیا قصور تھا؟ میری پھپھو ان 14 شہیدوں اور 100 زخمیوں کا کیا قصور تھا؟ ارے ہم تو تعمیر وطن کا خواب
कार्रवाई नहीं होती। इसी वजह से सानिया मॉडल टाउन में जो रियासती दहशतगर्दी हुई थी वो भी उस वक्त के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने करवाई थी। सानिया मॉडल टाउन में जो रियासती दहशतगर्दी हुई थी वो उस वक्त के वजीर आला पंजाब राणा सनाउल्लाह ने की थी। और रैली एक तरह से याददाश्त है कि 17 जून 2014 को बेगुनाह मासूम शहरियों का रियासती दहशतगर्दी के पेश नज़र जो खून बहाया गया वो निहत्ते पाकिस्तानी शहरियों, बेटों और बेटियों और बहनों का खून नहीं था, बल्कि वो उस फिक्र का खून था जो मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहती थी। वो उस नजरिए का खून था जो जुल्मतों में एक नूर का चिराग जला रहे थे। आज 17 जून का पाकिस्तान की तारीख में वो स्याह और भयानक दिन है कि जिस दिन पाकिस्तान के बड़े सूबे पंजाब और उसके मरकज लाहौर के अंदर दिन दिहाड़े मासूम, बेगुनाह, अमन पसंद और रहते मर्दों ख्वातीन जिनकी ज़बानों पे दुरूद पाक का विर्द था, जो अमन के दाई थे, जो अमन के अलमबरदार थे, जिनकी सारी जिंदगियां अमन की खातिर गुजरी और जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा अमन के लिए गुजारा, उन नहते मासूम लोगों पे रियासती दहशतगर्दी करते हुए हुक्मरानी के नशे में धुत और अंधे हुक्मरानों ने उनको जब शहीद किया तो पाकिस्तानी कौमी मीडिया की सारी आंखें, सारे कैमरे इस सानिया के गवाह हैं। लेकिन इसके बावजूद आज 7 साल गुजर चुके हैं, हम पाकिस्तान के अदारों से, पाकिस्तान के सतून मीडिया से, पाकिस्तान के बड़े सतून अदलिया से और मुख्तलिफ शोबों से हमेशा ये एहतजाज करते रहे कि अगर इन नहते और मासूम लोगों को इनका हक न। अकबर साहब जो निज़ामुल मदारिस के नाज़िम आला हैं वो मौजूद हैं और सानिया मॉडल टाउन के हवाले से इनसे पूछते हैं। सर क्या कहेंगे, 7 साल होने को आ रहे हैं सानिया मॉडल टाउन को, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 17 जून एक सियाह और भयानक दिन है पाकिस्तान की तारीख़ में कि जब नहते मासूम और बेगुनाह लोगों को, अमन पसंद लोगों को, जो अमन के दाई थे, अमन के लिए जिनकी ज़िंदगियां गुजरी थी, उनको सरेआम गोलियों से छिलनी कर दिया गया। और पाकिस्तान का तमाम कौमी मीडिया ज़ाहिर है उस चीज़ को अपने कैमरों में महफूज कर रहा था और हज़ारों लाखों आँखों ने उस सारे मंज़र को देखा। लेकिन इसके बावजूद 7 साल होने को हैं, अभी तक इंसाफ दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। तो इसमें ज़ाहिर है रियासत में जो इंसाफ देने वाले अदारे हैं वो भी ज़िम्मेदार हैं। वो सारे अदारे के जिनका इंसाफ से ताल्लुक़ है किसी न किसी सतह पे, वो इसमें बतौर मुजरिम भी हैं। कि देखें वो छोटी छोटी बच्चियां जो कल तक अभी लड़कपन की उम्र में थी, आज वो जवानी की उम्र में पहुंच चुकी हैं, अपनी माँ के इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही हैं, बच्चे खा रहे हैं, उनके ख़ानदान खा रहे हैं। और इसी तरह पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनान, तहरीक पूरी की पूरी, लेकिन इसके बावजूद कहीं इंसाफ हमें नज़र नहीं आता। आप सानिया मॉडल टाउन को 7 साल होने आ रहे हैं। देखिए ये जो वाक़या है ये वो आम वाक़या नहीं है। 2014 17 जून को जब इन्होंने दहशतगर्दी की और दहशतगर्दी 14 मासूम लोगों को उन्होंने कत्ल किया, वो शहीद हैं। उसके बाद हमें आर्मी चीफ के पास जाना पड़ा, धरना देना पड़ा। आर्मी चीफ ने
FI कटवाई और उसके बाद आज तक देखने कोई इंसाफ नहीं मिला। उसके बाद चीफ जस्टिस एक सुप्रीम पावर होती है जो साकिब निसार था, ये एक सवालिया निशान है मेरा कि उसने देख ले आज दिन तक बिस्मा के ऊपर हाथ रखा, सर के ऊपर, उसने इंसाफ नहीं दिलवाया। फिर इमरान खान है, उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान है। एक हद होती है सब्र की, अब हम सब्र नहीं करेंगे। इंशाल्लाह इनको कातलों को हम कैफरे करदार तक पहुँचाएंगे। ये दहशतगर्द थे, ये दहशतगर्द है। और जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ है, इस पाकिस्तान के मुहाफिज़ीन बारिश दीगर ये वादा कर चुके हैं कि वो इक़्तिदार संभालेंगे, शोहदाए मॉडल टाउन को इंसाफ देंगे। लेकिन ऐसी कौन सी रुकावट है जो मॉडल टाउन के शोहदा को इंसाफ फराहम करने में नाकाम रहे हैं? मैं कहना चाहूँगी कि अगर सानिया मॉडल टाउन के शोहदा को इंसाफ नहीं मिला तो फिर वो दिन दूर नहीं कि जब अल्लाह ताला की यहाँ अदालत लगेगी और मॉडल टाउन के शोहदा हमारे हाथ होंगे और इनकी गिरफ्तार होंगे, तब हम अल्लाह की अदालत में इनसे इंसाफ के दिल को छू ले, दरअसल फनकार निकले, चले के साथ जो मिला के कंधा। 7 सालों से हम इस मुल्क में इंसाफ चाहते हैं। हम इस मुल्क का काला कानून जो है उसके खिलाफ हैं। हम इंसाफ के लिए निकले थे, हमने इंसाफ के लिए आवाज लगाई थी। हमने इमरान खान साहब का साथ भी इसीलिए दिया था कि हम इंसाफ और इंकलाब की आवाज लेके निकले थे। और हमें उसी की सजा मिल रही है कि हमारे ही बंदों को शहीद कर दिया गया। कि दिहाड़ी 17 जून को हमारे लिए 14 शहीद लाशें और 100 गोलियां खवातीन जो हमला खवातीन थी उन पे गोलियां चलाई गई। सारी दुनिया में आज तक किसी भी हुक्मरान ने अपनी नारी को उनके ऊपर नहीं दिया। तो हम आज इंसाफ की राह पे खड़े हुए इंसाफ। इस वक्त सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान अवामी तहरीक जनाब नूरुल्लाह सद्दीकी साहब मौजूद हैं। सानिया मॉडल टाउन को साथ होने को आ रहे हैं, तो हम उस हवाले से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। ये फरमाइएगा कि 7 साल हो गए सानिया मॉडल टाउन के हुए, आज ये जो एहतजाज हो रहा है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज लाहौर समेत पाकिस्तान के 65 बड़े शहरों के अंदर एहतजाज हो रहा है। ये एहतजाज बुनियादी तौर पर हसूल इंसाफ के लिए है। इस वक्त सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि वो GIT जो सुप्रीम कोर्ट के फ्लोर पर हुकूमत ने बनाने का ऐलान किया था, उस GIT ने अपना सारा काम मुकम्मल कर लिया था। और एक ऐसे वक्त उसके ऊपर स्टे ऑर्डर आ गया जब वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करने जा रही थी। जब गैर जानबदार तफ्तीश नहीं होगी और ये चलान अदालत में पेश नहीं होगा तो गैर जानबदार जो ट्रायल है उसका आगाज़ कैसे हो सकता है। आज हम मोहतरम इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से भी इल्तिजा कर रहे हैं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से भी हमारी इल्तिजा है कि इस GIT को काम करने दिया जाए और इसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करने दी जाए, ताकि जो फेयर ट्रायल है जो आइन के आर्टिकल 10A के तहत हर शहरी का बुनियादी हक है, जब तक वो फेयर तफ्तीश नहीं होगी फेयर ट्रायल का आगाज़ नहीं हो सकता। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि 7 साल गुजर जाने के बाद भी जो शहदा के वर्सा हैं और पाकिस्तान अवामी तहरीक के जो कारकुनान हैं वो इंसाफ के लिए एहतजाज कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक कौमी अलमिया बनता जा रहा है। इंसाफ की अदम फराहमी से इंतशार आता है और तशद्दुद जन्म लेता है, मायूसी जन्म लेती है, और ऐसे माहौल के अंदर रियासत मदीना की तश्कील का जो ख्वाब है वो पाए तकमील को नहीं पहुँच सकता। मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान के अंदर इंसाफ के अदारे कितने आज़ाद, कितने खुद मुख्तार है, इस बात का अंदाज़ा हमें सानिया मॉडल टाउन के इंसाफ से होगा। हमने देखा है कि इमरान खान साहब उस वक्त मॉडल टाउन भी आए थे और उन्होंने वादे भी किए थे, तो अब ये ह्यूमन राइट्स की बहुत बड़ी वायलेशंस थी जो है ना, इस हवाले से आप क्या मैसेज दें? बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि इमरान खान साहब अपोजिशन रहनुमा के तौर पर सानिया मॉडल टाउन के हर एहतजाज में शरीक थे। वो मिनहाजुल कुरान के मरकजी सेक्रेटेरिएट में आकर मजलूमों और शहदा के वर्सा से मिलते थे और उनको यकीन दिलाते थे कि ये अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया और हम इक़्तिदार में आए तो ये 1 महीने की बात है। और ये बातें सब रिकॉर्ड पर हैं, ये महज हमारी तरफ से कोई मौक़िफ़ नहीं है, ख़ुद इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ है। और हम इस बात पर भी परेशान हैं, एक तो 17 जून 2014 का जो सानिया है वो बहुत ही रूह फुरसा और तकलीफ देने वाला है, और अब इंसाफ की जो अदम फरामी है वो भी तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में उस इंसाफ का ना मिलना हमारी
तकलीफ को उसने कई गुना बढ़ा दिया है। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब, आज आपके पास वक्त है, आज आपके पास इख्तियार है, आज आप जो चाहें कर सकते हैं इंसाफ की फराहमी के हवाले से। जब इक़्तिदार ख़त्म हो जाएगा, जब आपके पास ये जो अल्लाह ताला की तरफ से और आवाम की तरफ से जो इख्तियारात की मुद्दत मिली हुई है, जब ये ख़त्म होगी तो आप इस तरीके से फिर मैदान में आएँ कि हम और मजलूम और आप आंखों में आंखें डालकर बात कर सकें। आज आपके पास वक्त है, इस मोहलत को ज़ाया ना करें और इंसाफ की फराहमी के लिए जो आप कर सकते हैं उसको ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।